Hey there, this is Sanaya. Welcome back to my channel and welcome to another video. And finally, this is a video that I am making on this certain event that मैं इतने time से and I've been longing for since forever. ठीक है, that is my college allotment. And इस video में I'll finally be sharing you which college I have been allotted. Well, technically provisionally allotted. I mean like मैं पिछले video से इतना रो रही हूँ कब से regarding CET की मेरा तो process start ही नहीं हो रहा, मेरा तो college start ही नहीं हो रहा, लोग तो college में चले गए, उनका तो semester भी start हो गया, मैं यहाँ पे admission process ही wait कर रही हूँ. I think all of that crying finally comes to that end and अभी जाके finally मुझे एक college allot हुआ है. Obviously this is not the end and मैं कल से ही college नहीं जाने वाली. There is still a very long process to go. But at least there has been some development in this whole process. Which college I have been allotted, कहाँ मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, क्यों मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, कौन सी परसेंटाइल पे मिला है, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं इसको ले रही हूँ, क्या मैं पक्के से जा रही हूँ, everything I'll be sharing in this video. अपडेट्स की बात करूँ, so basically अभी CET का कैप राउंड प्रोसेस जो था that was around 26 से 28 where we had to do our choice filling. Right now अभी 31st को we have been given our provisional allotment again according to the schedule provided by CET. And in fact आज 1st August को we have also been given the option to do seat acceptance वाली जो फॉर्म होती है where you can either go for betterment or you can go for freezing. Now इसके आगे there's again round 2, then round 2 की choice filling, then again round 2 allotment, then round 3, ऐसे एक के बाद एक बहुत सारे events हैं. Now it is very important that आप ये सारे चीजों के साथ updated रहो and especially अभी round 2 आने वाला है. How would you know कि कहाँ कट ऑफ बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, लास्ट ईयर से कितना चेंज हुआ है. Now इस सब के लिए I know it requires immense research and immense scrolling of PDFs of 1400-1500 pages. Now I have mentioned this in my previous video as well that there is this very useful WhatsApp chatbot by College Dost जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स भाई खुद ब खुद मिल जाते हैं. You don't have to do anything. Ask your query कि भाई तुम्हें कट ऑफ जानना है, तुम्हें काउंसलिंग के अपडेट्स जानने हैं, तुम्हें कॉलेजेस जानने हैं, उनके ब्रांचेस जानने हैं. ऑल ऑफ द डेटा इज कम्प्लीटली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट चेंजेस जो हमारे कैप राउंड शेड्यूल में हो रहे हैं. You do not have to worry about scrolling through endless PDF. Have everything in a very concise way using this chatbot. All you have to do is go into the link in the description. आप directly WhatsApp chatbot पे पहुंच जाओगे and you can see a menu full of options and everything that you would need. You can find college cutoffs, उनके branches, changes, any updates regarding the schedule, everything that you would possibly need to know. So yeah, go check out in the link in the description and let me know तुम लोग को कौन से options मिल रहे हैं. Now in my previous videos I've already told you कि मेरी CET की परसेंटाइल इतनी कुछ खास नहीं है that I can be expecting something very grand. मेरी CET की परसेंटाइल is basically just 90 because मेरी मैथ्स obviously बहुत खराब है. So if I'm expecting कि मुझे 90 परसेंटाइल पे COEP, VJT या SPIT टाइप के कोई कॉलेजेस मिलेंगे then I am delusional pro max. Obviously मैंने मन बना लिया था that 90 परसेंटाइल पे I'm gonna try as much as I can for the best college and the branch that I could get. Now as I've mentioned in my previous video, मैं already एक counseling ले चुकी हूँ and उनका काम होता है that they provide personalized college options list to each and every student. तो उन्होंने मेरे को 150 options की list दी थी by the way and you are like totally you are allowed to fill 300 options in your preference list. Now उस 150 में से there were like around 100 to 120 only CS, AI, ML, data science and everything. Now I agree they are very good branches and very in demand kind of branches but मैंने ये मेरे पहले वीडियोस में ही कहा है that I am not very generally interested in CS, AI, ML वगैरह टाइप के branches. I was always very much inclined towards EC. और ENTC as like हर कॉलेज में डिफर करता है, it's the same thing. So मेरे लिए प्रेफरेंस वही थी that I have to get a good engineering college for ECE at my percentile which is quite low if you ask me. So मैंने technically वो काउंसलिंग की लिस्ट थोड़ी बहुत इग्नोर कर दी and मैंने खुद से ही मेरी प्रेफरेंसेस की लिस्ट भरी which had like only 25 ऑप्शंस एट मैक्स. वो 25 में से ऊपर के 10 तो मैंने टाइम पास ऑप्शंस डाले कि वो कतई नहीं हो रहा है मेरा. COEP, ECE, VJTI ECE, SPIT ECE, DJ सांगवी का ECE, ऐसे मैंने डाल के रखे भाई वो 98-99 पे क्लोज होता है, वो पक्के से नहीं हो रहा. तो ऊपर के ना 10 कुछ आई थिंक टाइम पास ऑप्शंस थे जो 95 पे क्लोज हो रहा है, 94 पे क्लोज हो रहा है. फिर भी मैंने डाल दिया कि जस्ट इन केस क्या पता. बट आई एम अ जनरल ओपन कैटेगरी सो आई जस्ट न्यू कि वो मेरा नहीं होने वाला कितना भी सीट वेकेंट रह जाए. इधर वे उसके बाद 11th एंड 12th जो ऑप्शन था दीज वर माई मोस्ट एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ कॉलेजेस. यहाँ पे तो पक्का ही हो रहा है, अगर 11 पे हो रहा है 11 वाला नहीं हो रहा है 12th पे तो पक्के से हो रहा है. 11th नंबर पे जो था उसका मेरा CET का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था. CET का लास्ट ईयर का डेटा वाज 91 और मेरा 90 है. सो आई वाज लाइक CET के थ्रू तो नहीं हो रहा है. ऑल इंडिया में वाज वेरी समवॉट 1-2 परसेंटाइल नियर माई जेई का स्कोर विच वाज आई थिंक 86 लास्ट ईयर का कट ऑफ ऑल इंडिया.
एंड उसके नीचे मैंने जो ऑप्शन रखा 12th नंबर ऑप्शन, उसका फंडा ऐसा था दैट इट वाज अ मुंबई कॉलेज। उसका सीईटी से मेरा हो रहा था बिकॉज दीज वर द टू मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉलेजेस। तो आई न्यू कि अगर यहाँ पे नहीं हो रहा मेरा ऑल इंडिया के थ्रू, ये वाला मेरा 12th नंबर पक्के से हो रहा है। एज एक्सपेक्टेड मेरे को अपना 12th नंबर मिला। नाउ यू वुड थिंक कि भाई और भी तो ईसी कॉलेजेस है एंड एवरीथिंग। नाउ आई वाज गेटिंग वालचंद एंड वाडिया कॉलेज के ईसीई एट माई परसेंटाइल, दैट इज मतलब 89 पे आई थिंक क्लोजिंग था उसका, वो आराम से मिल रहा था मुझे। बट आई पुट दैट एट 13 and 14 बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रेफर मुंबई ओवर सोलापुर, एंड वालचंद मतलब सोलापुर में है, सो आई वॉन्टेड टू प्रेफर मुंबई ओवर सोलापुर। सो मैंने वो मुंबई वाली कॉलेज 12 नंबर पे रखी एंड वो मुझे वही वाली अलॉट हो गई ना। जो 12th नंबर वाली कॉलेज है दैट इज शाह एंड एंकर कच्ची इंजीनियरिंग कॉलेज इन मुंबई। मुंबई वालों को पता होगा, आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस कॉलेजेस बिकॉज 90 परसेंटाइल वाले कॉलेजेस किसी को पता नहीं होता, बट दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू 90 परसेंटाइल। मेरे स्कोर के हिसाब से आई कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड कॉलेजेस, राइट? एंड बिकॉज आई एम अ ट्रू मुंबईकर ओनली एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मेरे लिए तो मतलब आई तो न्यू दिस कॉलेज वेरी वेल एंड आई वाज लाइक ठीक है मतलब अच्छा है। बट आई ऑब्वियसली मेरे दिमाग में था दैट उसके ऊपर मैंने जो 11th नंबर पे रखा है वो भी मिलने के चांसेस है मेरे को, सो व्हाई शुडंट आई ट्राई फॉर दैट। जो 11th नंबर वाला कॉलेज है उसका इस साल जेई का कट ऑफ थोड़े से बढ़ा है एंड टू सम एक्सटेंट कि मेरी जो रैंक है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया कट ऑफ, उसका कट ऑफ उससे 300 रैंक ऊपर है, बस 300 रैंक का डिफरेंस है। दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.15 और 17 परसेंटाइल, 0.17 दैट वाज द कट ऑफ एंड मैं उससे थोड़े नीचे हूँ। So why the heck would I not go for betterment? Basically we are given two options. One is the betterment and one is the freeze. Now betterment का मतलब होता है that you are contented with your seat, but आप अभी भी देखना चाहते हो that if at the same percentile and at the same rank क्या आपको बेटर कॉलेजेस में या कोई डिफरेंट ब्रांचेस मिल रही है कि नहीं। सो यू आर बेसिकली गोना सिट फॉर राउंड 2। हाउएवर जो आपको अभी भी सीट मिली है यू आर नॉट लूजिंग दैट, वो कहीं ना कहीं आपके पास स्टैंड बाय पे रखा हुआ है एंड इन केस यू गेट अलॉटेड दैट तो आपको एक सीट मिल जाएगी वहां पे एंड यू लूज द प्रोविजनल अलॉटेड सीट। एंड इन केस कोई कट ऑफ वगैरह में चेंज नहीं होती एंड इट्स स्टिल द सेम, देन आपके पास जो सीट पहले अलॉट हुई थी इट स्टेज द सेम। नाउ अनदर ऑप्शन दैट इज द फ्रीज ऑप्शन। इसका मतलब होता है दैट आई एम रियली रियली हैप्पी विद माई कॉलेज ऑप्शन और मुझे तो भाई बाकी कॉलेजेस देखने ही नहीं है, मुझे बाकी ऑप्शंस देखने ही नहीं है। सो वट एवर कॉलेज आई हैव गॉटन आई वांट टू लॉक इट इन कि मेरे को इधर ही एडमिशन लेना है। फ्रीज करते हैं उसको एंड उसके बाद सीईटी सेल का काम उधर ही खत्म हो जाता है। देन वी आर एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द कॉलेज रिगार्डिंग एडमिशन कैसा है क्या है, एंड ईदर वे वेदर यू गो फॉर बेटरमेंट और यू गो फॉर फ्रीज वी आर सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द सीट दैट हैज बीन अलॉटेड टू अस। तो दोनों को ही एक मिनिमल दैट इज 1000 रुपए पे करना पड़ता है टू सॉर्ट ऑफ कंफर्म दैट हाँ हम ये सीट ले रहे हैं। नाउ आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद माई शाह एंड एंकर का जो मुझे ऑप्शन मिला है। आई एम वेरी हैप्पी, माई पेरेंट्स आर हैप्पी बिकॉज मुंबई है एंड इस साल उसका कट ऑफ ना पिछले 2 साल से इतना ट्रिमेंडसली बढ़ा है। लास्ट ईयर तक भी सीईटी का उसका कट ऑफ वाज 78, इस साल it has gone till 85. That is a very good growth if you ask me. My parents were happy, I am happy because Mumbai है, but as much as I would love to go to Mumbai and have my college life in Mumbai and because वो मेरा घर है practically, I would still not let go of a chance जहाँ मैं 0.17 परसेंटाइल से पीछे हूँ। Peer group की वजह से ही I think I'm gonna go for betterment round. Otherwise because the 11th number is in Pune which is where I am right now and 12th number is Mumbai. दोनों ही शहर अच्छे हैं, दोनों ही कॉलेजेस अच्छे हैं, दोनों ही फैकल्टी अच्छी है, दोनों ही ब्रांचेस अच्छे हैं। ओनली डिफरेंस इज द पीयर ग्रुप की कट ऑफ डिफरेंस होगी, सो ऑब्वियसली द पीपल हु आर गोना बी स्टडीइंग विद यू इज गोना बी डिफरेंट। मैंने राउंड 2 के लिए बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। इन केस मेरा राउंड 2 में नहीं होता इवन ड्यूरिंग दिस 0.17 परसेंटाइल, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ क्लोज आई एम। नाउ इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज उसमें सीट्स बहुत कम है ऑल इंडिया के। द मेजोरिटी पूल सीट पूल जो है उसकी सीट मैट्रिक्स जो है इट इज मेजोरिटी थ्रू स्टेट लेवल सीट्स और ऑल इंडिया वाले सीट्स बहुत कम है और स्टेट लेवल मुझे इस बार नहीं मिलेगा बिकॉज उसका 93 गया है कट ऑफ और मैं 90 पे हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट 3 परसेंटाइल का डिफरेंस इन अ राउंड, तो मैं ऑल इंडिया के थ्रू ही अप्लाई कर रही हूँ ना। ऑल इंडिया में देयर इज ओनली 0.17 परसेंटाइल का डिफरेंस, सो आई आइडियली वुड वांट दैट बिकॉज मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली 93 के ऊपर वाले बच्चे हैं, सो दीज आर ऑब्वियसली बेटर पीपल देन मी हु आर मोर स्मार्टर देन मी, सो ऑब्वियसली संगति का असर बेटर होगा वहां पे। ये 0.17 परसेंटाइल इज वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर उसके बावजूद मुझे राउंड 2 में नहीं मिला देन मैं भगवान का संकेत समझूंगी कि भगवान चाहते हैं मैं मुंबई में यही वाला कॉलेज लूं, सो उसके बाद मैं नहीं करूंगी बिकॉज इतना नेग्लिजिबल डिफरेंस के बावजूद इफ आई डोंट गेट इट दैट मीन्स इट इज क्लियर, मतलब भगवान की गई हुई साजिश है ये कि भगवान वांट्स टू सेंड मी टू बॉम्बे ओनली, ही वांट्स मी टू स्टडी इन दैट कॉलेज ओनली। जो होगा हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करके चले जाएंगे बिकॉज बोथ ऑफ दिस कॉलेजेस आई एम वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी विद द ऑप्शंस, माय पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद द ऑप्शंस एंड दैट इज द मेन थिंग। मेरे पेरेंट्स खुश है भाई,
अभी तुम लोग को कमेंट्स में बोलना है व्हाट अ शिट कॉलेज, टायर 2 कॉलेज, टायर 3 कॉलेज, बोलना है बोल दो भाई. मेन थिंग इज मेरे पेरेंट्स खुश है. I don't need anything else in life. You can say whatever you want to. I don't really care. At this point मेरे को ना ये टायर 2 टायर 3 वाले टैक्स से फर्क भी नहीं पड़ता. मुझे ये प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग से भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनिशियली व्हेन आई वेंट फॉर जेई एंड इनिशियली व्हेन आई थॉट ऑफ डूइंग इंजीनियरिंग, माय फर्स्ट गोल was to become a good engineer. उस point पे मेरे लिए tags and everything did not matter. To be good at whatever I'm doing. That is primarily the reason कि मैंने 246 लाने के बावजूद मैं बिट्स पिलानी नहीं गई या बिट्स हैदराबाद नहीं गई, because I was getting MSc. Like I am drawn to ECE more than any other branch. So I will prefer to do that, although मेरे को बिट्स में मिल रहा है. But I have zero regrets because मुझे पता है it is not something for me. And अगर मैं मतलब मन मार के मैं कर भी लेती ना, I would not be satisfied, or I would at least not be good at what I was doing. Whatever it is, at this point, I am quite contented with my options. जिसको जो बोलना है कह सकता है. Of course, a 97 percentile, 98 percentile वाला person is gonna look down upon me, is like, what an ass college, what a shit college. I am contented, that's what matters at this point. मेरी मन की शांति सबसे ज़्यादा important है, and I'm very very grateful कि कुछ तो allot हुआ, and I'm at least ending up at a college that I am happy about, and a branch that I'm actually interested about. वो 11th preference कौन सा I am not revealing at this point. But yeah. लेट्स होप मुझे मिल जाए, एंड यू गाइज ऑल्सो प्रे कि मुझे मिल जाए, बिकॉज बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है. एंड उसके बावजूद नहीं मिला, मैं चली जाऊंगी भाई बॉम्बे. उसके बाद आई एम नॉट सिटिंग फॉर राउंड 3. उसके बाद इट्स अ क्लियर साइन दैट यू हैव टू गो टू बॉम्बे. सो अगर उसके बावजूद नहीं मिलता, वी आर गोइंग. सो या दैट इज प्रैक्टिकली इट. एंड या आई डोंट नो कॉलेज कब स्टार्ट होगी, डोंट आस्क मी दैट, बट तब तक चिल लाइफ चल रही है, खुश रहना है. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप चैटबॉट विच इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन. अगर तुम्हें अपने कट ऑफ्स या एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू डोंट हैव टू वरी कि अरे पैसे लगेंगे. यू कैन कमेंट डाउन बिलो तुम लोग को कौन सा अलॉट हुआ, एंड इफ यू आर गोना गो फॉर बेटरमेंट और इफ यू आर गोना फ्रीज इट. एंड अदर पीपल जिनका कॉलेज स्टार्ट हो गया है, यू कैन लेट डाउन योर एक्सपीरियंसेस ऑफ योर कैसा चल रहा है फर्स्ट कुछ दिन. सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स इन दिस प्रोसेस कि आगे क्या होता है, मैं कहाँ जाती हूँ. एंड इट्स वेरी सून दैट आई एम गोना गेट माई गोइंग टू कॉलेज फेज. या लेट्स होप everything works out well. So yeah, that is the end of this video. I will see you in another one. तब तक के लिए bye bye.